students, today we are going to start with Standard 6 Science, lesson number 2, Components of Food. Let us take a quick look at the session plan for today. Firstly, I'll be telling you about what are components of food. Secondly, basic components of food. Next is, why do we need nutrients in our body? A quick revision of the whole lesson. And lastly, questions based on what we have learned today. Before we start with the lesson, I would like to ask you one question. Why do we eat food? Do we eat food because we feel hungry, or food has some special role to play in our body? Okay, suppose we don't eat for 2 days. What will happen? We'll feel weak, we'll not be able to do our routine work. So the answer lies in the question itself. Food is like the fuel to the body. Imagine a scooter without petrol. Will it work? No. In the same way, our body won't work without food, because food provides energy to the body. And why do we need energy? Let us see. Okay, we need energy for doing our daily life work, like reading a book, that also needs energy. Running around the school, that you already do, that also needs energy. Riding a bike needs energy, and even resting when you're sleeping, that also needs energy. So what do food contains that we get so much of energy from food? Food contains nutrients. Yes, and what are nutrients? Essential substances that your body needs in order to grow and stay healthy are called nutrients. Like the components of food, which actually are contained in the food, and when we eat the food, we get energy and different sorts of components. Let us see which components do we get from the food. Carbohydrates, proteins, minerals, vitamins, fats, and last but not the least, water. I have made one pyramid for you to see what are the sources of carbohydrates. Let us see vitamins and minerals, proteins and fats, and one by one we are going to study about these. First one, carbohydrates, very important. Carbohydrates are the sugars and starches found in fruits, grains, vegetables, and of course milk. And carbohydrates provide us with lots and lots of energy. Where do we get carbohydrates from? We get carbohydrates from potatoes, from the cereals like rice and wheat, from bread, and of course your milk. Now let us move on to proteins. Okay, जब आपकी मम्मी आपको कहती हैं कि मिल्क में हमें कॉम्प्लान पीना है और हॉर्लिक्स डाल के देती हैं, तो वो असल में आपको बहुत सारा प्रोटीन पाउडर देती हैं ताकि आप जो ग्रोइंग एज में हैं आपको अच्छी ग्रोथ मिले. बिकॉज प्रोटीन्स हेल्प इन ग्रोथ ऑफ द बॉडी, एंड यू ऑल आर, बढ़ते बच्चे हैं आप, तो आपको ग्रोथ में ये प्रोटीन पाउडर हेल्प करता है. ऑल्सो जब आप गिर जाते हैं और आपको चोट लग जाती है तो आपके टिश्यूज़ जो है वो वॉर्न आउट हो जाते हैं, तो उन टिश्यूज़ को रिपेयर करने के लिए भी प्रोटीन्स आर वेरी वेरी एसेंशियल. लेट अस सी कि हमें प्रोटीन्स कहाँ से मिलते हैं. अगर आप एक नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप एग्स ले सकते हैं, मीट ले सकते हैं, फिश ले सकते हैं, विच कंटेन्स लॉट्स ऑफ प्रोटीन्स. लेकिन अगर आप एक वेजिटेरियन हैं जैसे कि मैं, तो आप बहुत सारी दालें खा सकते हैं, पल्सेस, ग्राम, चने, स्प्राउट्स ले सकते हैं, और ब्रोकली भी खा सकते हैं, जिससे कि आपको बहुत सारी प्रोटीन मिलती हैं, और आप you can that helps in the growth of the body, which is very essential, very beneficial for you. Let us see the next one, fats. Okay, सब कहते हैं फैट्स नहीं खाना चाहिए क्योंकि हम मोटे हो जाएंगे, ओबीज हो जाएंगे, बट स्टिल फैट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर बॉडी. और वो फैट्स हमें कहाँ से मिलते हैं? हमारा फेवरेट मिल्क, बटर, ओके, चीज़ विच यू लाइक टू ईट इन पिज़्ज़ा एंड ऑल दैट. सो ये सारी चीज़ों से हमें बहुत सारा फैट मिलता है, और वो फैट हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है. अपार्ट फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द बॉडी. येस, छोटे अमाउंट में ज़रूरी है, पर ज़रूरी है, इग्नोर नहीं कर सकते. लेट अस सी द नेक्स्ट वन. ओके, हमें सीजनल सब्जियां खानी चाहिए, हमें फ्रूट्स खाने चाहिए. मम्मी हमेशा प्रेशर करती है कि फ्रूट्स खाओ, वेजिटेबल्स खाओ. क्यों कहती है वैसा? क्योंकि विटामिन्स और मिनरल्स हमें मिलते हैं सब्जियों से और फलों से, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट. वाई दे आर इम्पॉर्टेंट? बिकॉज दे बिल्ड इम्यूनिटी इन आवर बॉडी, जो हमें रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है. हमें जो है हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम बेटर करता है. वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम बहुत सारे फ्रूट्स खाएं, बहुत सारे वेजिटेबल्स खाएं, और अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करें. ओके, इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द डिजीजेस. अगर हम विटामिन्स और मिनरल्स की कमी अगर हमारी बॉडी में हो जाती है
तो हमें डेफिशिएंसी डिजीजेस हो सकते हैं, जो कि हम आगे इस लेसन में पढ़ेंगे कि वो क्या होते हैं। उससे पहले हमें ये जान लेना ज़रूरी है कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और बहुत सारी चीज़ें जो हम अपने फूड में लेते हैं वो हमें वाइटमिन्स प्रोवाइड करते हैं, मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम, मिल्क में हमें कैल्शियम मिलता है, और आयरन, फॉस्फोरस, सोडियम, ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है टू बिल्ड इम्यूनिटी एंड टू फाइट फ्रॉम डिजीजेस। ओके, नेक्स्ट वन इज वाटर एंड रफेज। दिस इज द लास्ट वन बट वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, जैसे कि स्कॉच ब्राइट से हम बर्तन साफ करते हैं, वो कैसा होता है, रफ होता है, फाइब्रस होता है। उसी तरीके से हमारी बॉडी को क्लीन अप करने के लिए भी हमें फाइबर की ज़रूरत पड़ती है, और वो फाइबर हमें मिलता है रफेज से। ओके, रफेज हमें किस चीज़ से मिलता है? होल फ्रूट जो हम खाते हैं, सिर्फ जूस नहीं बल्कि पूरा का पूरा फ्रूट अगर हम खाते हैं तो हमें रफेज मिलता है। सैलड, जो मम्मी हमें सैलड काट के देती है, कच्चे फ्रूट्स देती है या कच्ची सब्जियां देती है, रॉ फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स, दे प्रोवाइड लॉट्स ऑफ रफेज टू द बॉडी फॉर क्लीनिंग द बॉडी फ्रॉम इनसाइड एंड फॉर डाइजेशन, फॉर बेटर डाइजेशन ऑफ द फूड, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब पानी, 70% पानी है हमारी बॉडी में, यानी आवर बॉडी इज लाइक वाटर बॉडी। तो हमारी बॉडी अगर वाटर बॉडी है तो वाटर बॉडी को वाटर चाहिए, और वाटर हमारी बॉडी में हमारी बॉडी को क्लीन करने का भी काम करता है। तो इस तरीके से रफेज एंड वाटर आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई दे आर इंपॉर्टेंट? बिकॉज दे हेल्प टू क्लीन द बॉडी एंड हेल्प इन डाइजेशन। तो जो भी हम खाते हैं वो डाइजेस्ट होना भी उतना ही ज़रूरी है। ओके, लेट अस मूव ऑन टू द समरी कि आज हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा कि फूड कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स व्हिच हेल्प टू गेट एनर्जी फॉर ऑल आवर एक्टिविटीज़। हम जो भी करते हैं उसके लिए फूड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। फूड इज़ लाइक फ्यूल टू द बॉडी। नेक्स्ट इज मेन कंपोनेंट्स ऑफ फूड जो हमने पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर एंड रफेज। नेक्स्ट इज ऑल दीज कंपोनेंट्स कीप आवर बॉडी हेल्दी एंड हेल्प अस टू फाइट डिजीजेस। फूड हमें क्यों चाहिए? ताकि हमारी बॉडी हेल्दी रहे, हम सारे एक्टिविटीज़ कर सकें और हमें कोई भी बीमारी छू भी ना सके, यानी कि दे हेल्प अस टू फाइट डिजीजेस। हमारी इम्यून सिस्टम को बहुत ही अच्छे से स्ट्रॉन्ग करने के लिए फूड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव लर्न्ड टुडे। इसके साथ आपको मिलेगा एक MCQs का 10 MCQs आपको मिलेंगे, जो कि आपको अपने लेसन जो हमने पढ़ा उसमें व्हाट यू हैव लर्न्ड यू हैव टू इवैल्यूएट योरसेल्फ, और इसके लिए आपको MCQs मिलेंगे जो आपको कंप्लीट करने हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द लेसन। थैंक यू सो मच।